Hello, good morning to all of you. Once again, welcome to the English classes. This is Vidyasagar Mun. Today, we shall be starting a new chapter from your course textbook, The Snapshots. Alright? Now, this chapter is again a story. It is written by an American novelist and writer. His name is William Saroyan. This story is this is actually an Armenian story. Armenia is a country, okay? This is an Armenian story. And the story deals with particularly two characters. They are brothers or cousins. And it also deals with another character, which necessarily is not a human being, but a horse. It's a horse. Okay, so it's the very first chapter of your course book Snapshots. It is called as The Summer of the Beautiful White Horse. Okay, so let's look into a little bit of who the author was and what works has he done in his life. William Saroyan was born 31st of August 1908, and he passed away in 1984. Okay, now he was awarded a very prestigious award in literature called as the Pulitzer Prize. That was in the year 1940. Now he was awarded the Pulitzer Prize for drama. Okay, so he has written many dramas as well. So he was a playwright. Now, in the sense that he was a playwright, let us try to understand this. That there are many playwrights of the world who have gone on to become famous novelists as well. Okay. Generally, the difference between a drama and a novel is precisely about characterization and how they are performed. A novel is necessarily divided into two parts. One is a fictional novel and the other one is a non-fictional novel. Now, when you're talking about a fictional novel, what do we understand from this word fiction? Fiction necessarily means a story, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि काल्पनिक गाथा या काल्पनिक गल्प, है ना? So ये जो काल्पनिक गाथा होती है या फिर कहानी होती है साधारण हिंदुस्तानी में, उसको हम फिक्शन कहते हैं, क्योंकि ये कल्पना के ऊपर है. कोई भी एक इंसान अपनी कल्पना को यूज करके, अपनी इमेजिनेशन को यूज करके जो कुछ भी कहानी हमसे कहें, उसको हम फिक्शनल स्टोरी बोलते हैं. तो नॉवल जो होता है जनरली इट इज द स्कोप ऑफ द नॉवल encompasses many time frames, not necessarily one particular time frame, and hence the novel is generally a lengthy story. Okay, there are many characters in it. What is a drama? A drama is also a story. Okay, but the objective behind writing a drama is to perform it on stage. Okay, now a drama has got to do with performance arts. Well, I'm not saying even for once that a novel or a story has got nothing to do with performance arts, because as you might have seen, there are many novels which have actually given birth to beautiful movies. We say that those movies are the dramatic adaptations of novels. For example, there is a very famous novel by this Afghan-American author novelist called as Khalid Hosseini. He has written many novels. Most importantly, there are three novels that are popular. One is The Kite Runner, the other one is A Thousand Splendid Suns, and the other one is The Mountains Echoed. Now, The Kite Runner was his first novel, and it was hugely popular. If you read the novel, you will come to see as to how the adaptation, the cinematic adaptation of this novel, The Kite Runner, has become so successful. And my dear friends, let me also tell you that to understand or to have a better sense of a movie or a cinema, if the cinema is an adaptation from a novel, please do go ahead and read a novel so that you are in a position to better understand or to have a better insight into the movie or the performance art that has been made for us, and we will be able to enjoy the audiovisual output. Having said so, let's come back to the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. Okay, now this American author has written this story. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. बच्चे,
आर्मीनिया की बात जब कर रहा हूँ मुझे याद आ रहा है, आई एम लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एज वेल, सो आर यू, मेनी ऑफ यू, और एज आर यू. You know, there is a beautiful, a very old, almost around 2,500, 3,000 year old musical instrument from Armenia. It's called as duduk. Duduk. All right. Please do look it up on Google or probably even on YouTube. Okay. Let me tell you about a very famous musician. His name is Yanni. You must have heard of him. Yanni. Okay. He's a very, very famous musician, music director, performer, and so on and so forth. There is a particular performance that he organized at various places across the globe, and it was called as, there are two performances which he actually did. One of them was The Storm, and the other one is Nostalgia. Please watch the video. There, in that video on YouTube, he talks about this Armenian musical instrument called as duduk. Okay, it's a beautiful musical instrument. So when you have your free time or at your leisure time, you can actually watch the video and bask in the glory of that beautiful musical instrument. Okay, having said so, this story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. There is a particular word called hallmark. आप लोग ये सुने जरूर होंगे. हॉलमार्क क्यों बोला जाता है या फिर इसका मीनिंग क्या है? बच्चे, हॉलमार्क ऐसा थोड़ी है कि एक बहुत बड़ा हॉल है और वहां पर कुछ मार्क किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है. लेकिन फिर भी हॉलमार्क का मतलब है एन आइडेंटिटी, है ना, एक आइडेंटिटी, और लेट अस से अ साइन और अ सिंबल और अ मीनिंग. करेक्ट. सो हियर the author tells us that this is an Armenian story about two boys and they belong to an Armenian tribe, and the tribe is famous, or it is known, or it is symbolic for two ethical values. And what are they? One of them is trust and the other one is honesty. तो ये जो आर्मीनियन ट्राइब था जहाँ से ये दो लड़के थे, वो ट्राइब में ट्रस्ट या फिर विश्वास और ऑनेस्टी या फिर सच्चाई, इस चीज़ पर, इन दोनों जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं या एथिकल वैल्यूज़ होते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा ही गौर फरमाया जाता था, बहुत ज़्यादा ही जोर दिया जाता था. तो स्टोरी क्या है? One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. तो यहाँ पर बच्चे आप देखोगे कि फर्स्ट पर्सन में ही ये कहानी शुरू होती है, या फिर फर्स्ट पर्सन से ये कहानी शुरू होती है. कहने का तात्पर्य क्या है? दैट द ऑथर बिगिंस द स्टोरी इन द वर्ड्स ऑफ वन ऑफ दीज टू बॉयज हु स्पीक्स अबाउट हिज डेज ऑफ बॉयहुड or childhood, and he talks about one particular day wherein his cousin, whose name is Murad, correct, his name is Murad, he comes to his house and wakes him up very early in the morning at 4 AM. उससे पहले वो थोड़ा सा हमको एक प्रीफेस देते हैं, या फिर क्या बोला जाएगा, एक ऑलमोस्ट प्रीएम्बल, है ना. प्रीएम्बल, ये वर्ड थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पर बच्चे. प्रीएम्बल का मीनिंग क्या है? आप लोगों ने पढ़ा तो जरूर होगा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना. तो ये प्रीएम्बल का मतलब वो नहीं कि सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले लिखा जाता है. प्रीएम्बल वर्ड का एक मीनिंग होता है. नाउ इट कम्स, और द वर्ड प्रीएम्बल टेक्स इट्स रूट्स फ्रॉम टू वर्ड्स. वन इज प्री, जिसका अर्थ है पहले, और एम्बल. एम्बल का मतलब क्या है? मूवमेंट, और दी एबिलिटी टू मूव इज कॉल्ड एज एम्बल. जैसे आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस, उसको एम्बुलेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पर किसी को बिठा करके या फिर किसी को लेटा करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, तो उसीलिए उसको एम्बुलेंस बोला जाता है. और अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, लेट अस से, और अ पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट which can be used to move people or to shift people from one place to another is called as an ambulance, especially in case of a medical emergency or a medical requirement or a necessity. But यहाँ पर प्रीएम्बल क्या बोला गया? माने
किसी चीज़ को कहने से पहले, किसी चीज़ को दर्शाने से पहले, किसी चीज़ को दिखाने से, बताने से, जताने से पहले हम जो चीज़ कहते हैं उसके बारे में, उसको हम प्रीएम्बल कहते हैं। और इसी रीज़न से कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखने से पहले एक प्रीएम्बल लिखा गया है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बारे में हम बोलते हैं कि हम लोगों ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है ये हम लोगों ने अपने लिए बनाया है, हम लोगों ने ही बनाया है और किसी दूसरे इंसान ने नहीं बनाया है, और वो हमारे लिए ही है, ठीक। और उसी को हम लोग प्रीएम्बल कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रीफेस जो किताबों में जनरली लिखा होता है कि ये किताब किसके बारे में है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या ये टेक्स्ट बुक है या फिर नॉवल है या जो कुछ भी है, उसके बारे में प्रीफेस में लिखा जाता है। सो द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज प्रीएम्बुलेटरी इन नेचर, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, गुड ओल्ड डेज, बच्चे गुड ओल्ड डेज ऐसा हम जनरली कहते हैं, बैक इन द गुड ओल्ड डेज। इसका मतलब क्या है, माने वो जो बीते हुए दिन, और उससे पहले गुड लिखा गया है, बैड ओल्ड डेज तो नहीं लिखा गया। इसका मतलब यह है कि जो बीते गए दिन हैं, जो अच्छे बीते हुए दिन हैं, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ, है ना। इट इज नेसेसरीली यू कैन से अ वेरी फ्रेजल और इडियोमैटिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जहाँ पर हम जनरली या फिर फिगरेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जहाँ पर हम अपने बीते हुए दिनों के बारे में बताते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, या मतलब ये जो दो लड़कों में से जो बोल रहे हैं वो 9 साल के थे। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। सीधी सी बात है बच्चे, यू गाइज आर यंग इनफ, तो एक 9 साल का बच्चा है ना, उसके लिए दुनिया क्या होगी, उसके लिए दुनिया एक कल्पना से भरी, इमेजिनेशन से भरी और मैग्निफिसेंस से भरी। मैग्निफिसेंस माने एनीथिंग दैट इज ब्यूटीफुल, एनीथिंग दैट इज मैग्निफिसेंट, राइट, इज कॉल्ड एज मैग्निफिसेंस, और द स्टेट ऑफ बीइंग मैग्निफिसेंट इज कॉल्ड एज मैग्निफिसेंस, करेक्ट। तो अभी ये जो कल्पना या फिर सुंदरता से भरी जो दुनिया थी, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब मैं 9 साल का था। और उस दिन क्या हुआ, एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। बोल रहा है कि एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, माने जिंदगी जो है या जीवन जो है वो हम सब लोगों के लिए उस उम्र में, उस वक्त हम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशहाल और खुशनुमा एक्सपीरियंस हुआ करता था या अनुभव हुआ करता था। उसके बारे में बता रहे हैं। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। माई कजिन मुराद, हु एवरीवन कंसिडर्ड क्रेजी, वो बोल रहा है कि मेरा जो एक कजिन है या जो भाई है ना, चचेरा बेटा होगा या ममेरा बेटा होगा या फूफा जी का बेटा होगा, जो भी, वो जो उसका नाम था मुराद, तो उसको सब लोग थोड़ा सा पागल समझते थे, सनकी समझते थे। मैं नहीं समझता था, बट मी, एवरीवन बट मी, एवरीवन एक्सेप्ट मी, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning। सवेरे सवेरे तड़के 4 बजे हमारे घर आया और खिड़की में मुझे आवाज देने लगा। कैसे? बाय टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। He came to my place, he came over to our place and he started to wake me up early at 4 o'clock in the morning by tapping on my window. आराम, he said, मैंने ये जो बात कर रहे हैं उनका नाम क्या है? आराम है। तो जो कजिन है उसका नाम मुराद है, जो पहले शुरू किए उनका नाम क्या है? आराम है। आराम, he said, I jumped out of bed and looked out of the window. I could not believe what I saw. जब उसने मुझे पुकारा, मुराद ने मुझे पुकारा, जगाने की कोशिश की, तो मैं एकदम से चौंक कर उठ गया अपनी नींद से। और जब मैंने बाहर देखा तो क्या देखा? इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। तो यहाँ पर आराम हमको बता रहे हैं कि साल का कौन सा वक्त था या फिर साल का कौन सा महीना चल रहा था। बता रहे हैं कि सवेरे सवेरे 4 बजे मैं उठा। जनरली अंधेरा होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो समर सीजन था या फिर गर्मी का महीना था, इसीलिए डे ब्रेक या फिर जो सुबह होती है जब सूरज उगता है वो कुछ ही दूर था, और इसी वजह से थोड़ी बहुत उजाला बाहर थी। एंड हेंस ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड और रियलाइज दैट इट वॉज ऑलमोस्ट मॉर्निंग।
सवेरा होने को है ये वो जान गए, और ये भी जान गए कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, वास्तविकता में मेरा जो कजिन है मुराद वो मुझे उठाने या फिर बुलाने आया हुआ है। फिर क्या हुआ? माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। फिर बताते हैं ये जो मियाँ आराम है वो हमको बताते हैं कि माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। वो एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर सफेद घोड़े पर बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ? आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखने की कोशिश की। आंख मलते हुए, क्यों? नींद से उठे हैं, सो करके उठे हैं, तो सीधी सी बात है, आंख मलते हुए वो देखने की उन्होंने कोशिश की। फिर क्या हुआ? यस ही सेड इन आर्मीनियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। तो ये जो मुराद है आराम से क्या फरमा रहे हैं? बोल रहे हैं हाँ हाँ तुम सही देख रहे हो, तुम सपना नहीं देख रहे हो भाई, जल्दी आओ। ये एक बहुत ही सफेद खूबसूरत घोड़ा है और अगर तुमको इसकी सवारी करनी है तो जल्दी तैयार होकर के बाहर निकलो। ये किसने कहा? मुराद ने कहा आराम से, है ना। तो हम थोड़े आराम से आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बताते हैं? आई न्यू माई कजिन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. ये एक बहुत ही छोटे से बच्चे तो थे ही, लेकिन फिर भी वो एक बढ़िया बात बोल रहे हैं, एक दर्शन की बात बोल रहे हैं, फिलोसफिकल बात हमको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं आई न्यू माई कजिन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीवन एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। कह रहे हैं कि मैंने जितने लोगों को जाना था या जितने लोगों को मैं जानता था उनमें से मेरा ये जो कजिन था मुराद, वो एक ऐसा इंसान था जिसको कि जीना आता था, है ना। बच्चे एक छोटा सा छोटी सी कहावत कहना चाहूँगा आपसे। इन द इंडियन आर्मी जनरली दे से दैट देर आर मेनी मैन हु आर बॉर्न बट नॉट मेनी नो हाउ टू लिव। कहा जाता है इंडियन आर्मी में कि लोग तो पैदा होते हैं लेकिन ऐसे कम ही लोग होते हैं जो सही मायने में जीना जानते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड लिविंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मियर सब्सिस्टेंस एंड लाइफ। उसके बारे में यहाँ पर ये जो आराम मियाँ हैं हमको बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जितने भी लोगों से मैं संस्पर्श में आया था, जितने भी लोगों को मैं जानता था, उनमें से मुराद एक ऐसा है, मेरा जो भाई है, वो जिंदगी जीना जानता था। आप लोगों ने एक सिनेमा तो जरूर देखा होगा, है ना। सिनेमा की बात मैं जनरली करता हूँ क्योंकि वहाँ से हम लोग जिंदगी की बात बहुत कुछ सीखते भी हैं, अच्छी बात है। ये एक सिनेमा है ये जवानी है दीवानी, और एक और सिनेमा है वेक अप सिड। आपने वेक अप सिड अगर नहीं देखा है प्लीज़ वॉच दैट मूवी, यू गाइज आर यंगस्टर्स, आप लोगों को वो सिनेमा देखनी भी चाहिए। ये जो वेक अप सिड है वहाँ पर जो कैरेक्टर कोंकणा सेन शर्मा ने निभाया है, वो जो लिखती हैं, जब वो लिखती हैं, शी एस्पायर्स टू बी अ राइटर, शी कम्स टू बॉम्बे फ्रॉम कैलकाटा एंड शी एस्पायर्स टू बी अ राइटर। तो वो जब आती हैं मुंबई तो वो क्या लिखती हैं? लिखती हैं कि मैं जिसके साथ रहती थी या जो मेरा रूममेट था, है ना, वो एक ऐसा लड़का था जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। He did not have a goal or an objective in life. I was sure that I wanted to be a writer. He wasn't sure, he wasn't even certain about what he wanted to do in life. लेकिन उसको एक चीज़ बिल्कुल पता था, उसको ज़िंदगी कैसी जी जाती है वो बिल्कुल पता था। बहुत ही खुशदिल इंसान था, बहुत ही खुशमिजाज इंसान था। उसी तरह यहाँ पर आराम हमको बता रहे हैं कि ये जो लड़का है मुराद, वो कैसे बहुत ही खुशदिल इंसान था। ये जवानी है दीवानी की भी बात मैंने कही, वहाँ पर भी रणबीर कपूर साहब उन्होंने बहुत ही उम्दा एक्टिंग की है। और वहाँ पर भी जैसे वो बोलता है ना, वो हीरोइन जो होती है दीपिका पादुकोण, उसको बोलता है कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जो इंसान जिंदगी को जीना चाहता है, जो खुशहाल इंसान होता है, जो मन में से एक इंसान ऐसा होता है जिसके मन में एक डिटर्मिनेशन होती है कि मैं कोई भी चीज़ कर गुजर जाऊँगा, ये जो कर गुजर जाने वाली जो एक हमारे मन में एक शिद्दत होती है, ईमानदार शिद्दत होती है, वो इंसान या फिर उस तरीके के इंसान जो हैं दे आर वेरी लाइवली, है ना, जिंदगी को बहुत एंजॉय करते हैं। उसी तरीके का इंसान ये मुराद था, उसके बारे में वो बोल रहे हैं।
बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। बोल रहा है कि मैं जानता जरूर था कि, आराम बोल रहा है कि मुराद एक बहुत ही खुशदिल इंसान है जो जिंदगी को जीना चाहता था, है ना, लेकिन फिर भी ये जो सफेद घोड़ा लेकर के वो आ गया अचानक से सवेरे सवेरे तड़के 4 बजे और मुझे उठा करके बोलता कि भाई बाहर आ जाओ अगर तुमको घोड़े की सवारी करनी है तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा एक सरप्राइज था कि भले ही वो खुशदिल इंसान हो लेकिन ये क्या कर बैठा ये, है ना। सो इट वॉज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर मी और प्रॉबेबली एन एस्टॉनिशमेंट फॉर मी। आगे क्या बोलते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस and my first longings had been longings to ride. Longing, L-O-N-G-I-N-G, यहाँ पर S लगाया है प्लूरल फॉर्म में। So longing माने क्या है? Longing माने a very strong desire, a very very strong desire to do something, to get something, to achieve something is called as longing. तो वो क्या बोल रहे हैं हमको, आराम हमको क्या फरमा रहे हैं? In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. बोलते हैं कि मैं जितना जिंदगी के पीछे जाऊं, अपनी उम्र के पीछे जाऊं और मैं अगर याद करने की कोशिश करूं तो मेरी पहली ख्वाहिश या पहली यादें क्या थी, घोड़ों के बारे में, और मुझे घुड़सवारी करने का बहुत ही एक दिली ख्वाहिश थी, दिली शौक था, लॉन्गिंग, है ना, दिली ख्वाहिश थी, या फिर एक गुजारिश जो कहते हैं मन से गुजारिश की भर काश मुझे घोड़ा मिल जाए जिसको मैं सवार करके आसपास घूम सकूं, उसके बारे में आराम बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। बोलता है कि ये एक वंडरफुल पार्ट था। वंडरफुल पार्ट क्यों बोल रहे हैं? वंडर माने क्या, किसी भी चीज के बारे में सोचना, कल्पना करना, है ना। तो ये वंडरफुल पार्ट था, क्यों? क्योंकि सोच है। लेकिन आयरनी ऑफ लाइफ क्या थी, दैट वी वर पुअर। आराम फरमाते हैं, आराम फरमाते हैं मतलब आराम जो इंसान है, आराम रेस्ट नहीं, आराम हमसे फरमाते हैं, कहते हैं कि मेरी सोच तो ये जरूर थी कि हमारे पास घोड़े हों, मैं घुड़सवारी कर सकूं, ये वो, लेकिन जो वास्तविकता थी जीवन की, जो रियलिटी थी जिंदगी, वो क्या थी कि हम लोग गरीब थे। कहा जाता है बच्चे अंग्रेजी में, आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ प्रोवर्ब, and the proverb goes something like this: if wishes were horses then beggars would ride. फिर से कहता हूं, if wishes were horses beggars would ride. इसका मतलब कि अगर इच्छाएं या आशाएं घोड़े होते तो भिखारी भी घोड़े चढ़ते, है ना, सीधी बात है। इट इज अ वेरी colloquial or an ornamental way of putting ironical things in life into perspective. Even then, यहाँ पर उसी तरीके की कोई बात आराम हमसे कहते हैं कि हम लोग गरीब थे, लेकिन मेरी ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश या लॉन्गिंग जो थी वो क्या थी कि मैं घुड़सवारी कर पाऊं और मेरी या मेरा अपना एक घोड़ा। आगे क्या बोलते हैं, दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। देखिए बच्चे, दिस वॉज द पार्ट, विच वॉज द पार्ट, दिस आयरनी ऑफ लाइफ, कि हम लोग गरीब थे और उसी के चलते मैं ये यकीन नहीं कर पाया, ये विश्वास नहीं कर पाया जो मैं देख रहा था। क्या देख रहा था कि मेरा भाई मुराद जो है वो एक सफेद रंग का घोड़ा लेकर के आ गया है और मुझसे बोल रहा है कि भाई चलो हम लोग घुड़सवारी करेंगे, जल्दी बाहर निकलो। क्योंकि मैं गरीब था, क्योंकि हम तंगी में जीते थे, मुफलिसी में जीते थे, इसीलिए मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा था, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरा जो कजिन भाई मुराद है वो एक घोड़ा लेकर के आ गया है, और वो भी इतना खूबसूरत सफेद रंग का घोड़ा, और मुझे बोल रहा है कि बाहर आइए भैया, हम दोनों सवारी करेंगे। आगे, वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन। बोल रहे हैं हम लोग बहुत गरीब थे, तंगी में चलते थे, और हमारा जो एक पूरा का पूरा ट्राइब था ना, कुनबा जो था, कुनबे के कुनबे में, कुनबा का कुनबा जो था वो सबका सबके सब वहां पर गरीब थे। पॉवर्टी स्ट्रिकन, स्ट्राइक से स्ट्रिकन हुआ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रिकन, उस हिसाब से पॉवर्टी माने गरीबी। तो हम लोग गरीबी के मारे हुए थे, जो हमारा जो ट्राइब था, जो आर्मेनियन ट्राइब था, हम लोग बहुत ही गरीब थे। आगे क्या बोल रहे हैं, एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। बच्चे देखो,
अमेजिंग एंड कॉमिकल, ये वर्ड्स दोनों एक साथ यूज करना, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ मेटाफॉर, और यू कैन गो अहेड एंड से इट्स ऑलमोस्ट यूनिकॉर्निश, है ना, क्योंकि यूनिकॉर्न इटसेल्फ इज अ मेटाफॉर। यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो ट्राइब था उस ट्राइब का नाम क्या था, गैरोग्लिनियन ट्राइब। तो क्या बोलते हैं every branch of the Garibaldinian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Now, how can something be amazing and comical at the same time? Well, in reality, they can be. Amazing माने आश्चर्यजनक और कॉमिकल माने मजाकिया, है ना, जो एक हंसी का माहौल ले आए उसको कॉमिकल बोलते हैं। तो बोल रहे हैं, ये आराम बोलते हैं कि हमारा जो ये ट्राइब था, गैरोग्लिनियन ट्राइब, दैट वाज लिविंग इन स्टार्क पॉवर्टी, बहुत ही गरीब, बहुत ही मुफलिसी में हम लोग जीते थे। लेकिन फिर भी ये जो हमारे जीने का अंदाज था वो क्या था, इट वाज अमेजिंग, बहुत ही आश्चर्यजनक था। एट द सेम टाइम इट वाज कॉमिकल, इट वाज फनी। लोग हमको देख करके शायद हंसते भी होंगे या फिर हंसी का माहौल बनता भी होगा हमारे गरीबी में जो हम लोग जीते हैं उसको देख करके। आगे, nobody with food in our bellies, nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. Most important of all, though, we were famous for our honesty. बोलते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि हम लोग एक्चुअली अपना गुजारा कैसे करते हैं, खाना पीना कैसे करते हैं, रोजमर्रे की जो ज़रूरतें होती हैं ज़िंदगी में वो हम पूरी कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी इतने गरीबी के बाद भी हमारा जो एक कुनबा था, हमारा जो एक हजूम था या जो ट्राइब था, ये ट्राइब के बारे में लोग आसानी से एक बात ज़रूर कह सकते थे। वो क्या था, आवर ट्राइब वॉज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ट्राइब्स इन आर्मीनिया। माने हमारे जो लोग थे वो बहुत ही सच्चाई परस्त, ईमानदारी परस्त इंसान थे। इसके बारे में लोग कहावत भी लिखते थे कि अगर आपको सच्चा बनना हो या फिर आपको ईमानदार बनना हो तो आपको वो गैरोग्लिनियन ट्राइब के बारे में कि या फिर उनकी तरह ईमानदार या सच्चा बनना चाहिए। आगे क्या है बच्चे, हाँ, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. यहाँ पर आराम हमको उनके जो ट्राइब है, ये जो गैरोग्लिनियन ट्राइब है, उसके बारे में एक इंसाइट देते हैं। क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों की ये जो हम लोगों का ये जो ट्राइब है वो 1100 साल से है, 11 सेंचुरीज, 1100 साल से चलती आई है। ये जो हमारा ये जो ट्राइब है या फिर हम लोगों के जीने का जो अंदाज है वो 1100 साल से चलता है। किसी एक ज़माने में बहुत ही धनी हुआ करते थे, बहुत ही वेल्थी हुआ करते थे हम लोग, लेकिन फिर भी सबसे पहले हमारे ट्राइब के लोग किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, वो थी ऑनेस्टी। और दूसरा, हमने कभी भी या फिर हमारे ट्राइब में से किसी ने भी इन 1100 सालों में, 1100 साल एक बहुत ही लंबा वक्त होता है इंसानी ज़िंदगी में, तो कहते हैं इन 1100 सालों में कोई भी हमारे ट्राइब में से कभी भी किसी और को तकलीफ दे करके खुद आराम से रहना, ये हम लोगों ने कभी नहीं किया। We have never taken advantage of anyone to be in comfort ourselves. और हम लोग सबसे ज़्यादा ईमानदार और सबसे ज़्यादा सच्चे इंसान, इसके बारे में कहते हैं none of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. आखिर में बोलते हैं let alone steal. let alone steal, ये एक नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है। let alone के बाद कुछ भी चीज किया जाए माने वो चीज नहीं करते थे। माने यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में, लेकिन चोरी नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1100 सालों से लोग हमारे नाम से कसीदें पढ़ते थे। किस चीज़ की कसीदें? कि ये लोग सबसे सच्चे हैं, ये लोग सबसे ईमानदार हैं।
उसी के लिए कहा, वो आराम जो है यहाँ पर फरमा रहे हैं कि वी वुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनीवन फॉर आवर ओन कंफर्ट, लेट अलोन स्टील, चोरी हम नहीं करेंगे। बच्चे आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा हम ये जो क्या बोलते हैं उसको क्या बोला जाए, थोड़ी सी हम सस्पेंस रखेंगे कि ये कहानी कैसी है। वैसे आप लोग बच्चे घर में बैठ करके शायद ये कहानी पढ़ भी चुके होंगे, अच्छी ही बात है। फिर से हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो भी वर्ड्स आपको समझ में ना आए, काइंडली लुक अप फॉर द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स आइदर इन डिक्शनरीज और ऑन गूगल। थोड़ा सा ढूंढना और उन वर्ड्स का मीनिंग, उसका एटिमोलॉजी कहाँ क्या है, ओरिजिन ऑफ द वर्ड कहाँ से आया है, कैसा है, उस कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, वो सब भी थोड़ा सा देखना। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो सब भी थोड़ा सा देखना। इट साउंड्स like something which is very probably like drudgery, but then it's not drudgery. It's very important for all of you that you find out the meanings of all new words that you come across. Maybe the words sound difficult, maybe the pronunciation of those words are not as easy as they can be. Having said so, it is very, very important to understand that we need to find the meanings of these words and at the same time try to make sentences of our own. Alright, it was good speaking to all of you. I hope and pray that this class was as informative as it was fun, or as fun as it was informative. See you in the next class. If you have any doubts, you are free to give me a message or a call. God bless you all. Thank you very much.